Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, is a mathematics teacher representing Shantipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, today I am taking one more time introduction of the chapter number 5 of the class 8 mathematics. The name of the chapter, data handling. That means branch of mathematics introduced by the statistics. Student, in the previous video related to introduction chapter number 1, we see number of methods, that means a mean, average. Second one, median. Now time to define the mode. First one mode and second one graph. Okay student, introduction complete after this video. First one, what is the meaning of the mode? Mode, that means definition of mode, maximum frequency. Maximum frequency are known as mode. What is the meaning of this sentence student? Be careful, पहले समझने की कोशिश करेंगे. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स अगर जो पर्टिकुलर कोई सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है 2, 5, 7, 3, 9, 7, 2, 7, 3, 7, 5, 9, 7, 3. Student, how to solve? Be careful. First one, arrange in ascending order. Arrange in ascending order. जब भी आपको ठीक है किसी भी क्वेश्चन में मोड या मीडियन कैलकुलेट करना है, when you want to calculate the mode or median from the series, ठीक है, just write down observations in a ascending order. What is the meaning of the ascending order? We will start with the basic, बिल्कुल छोटा. Student 2, here again 2, so 2, 2, then after 3 and 3, how many times? 1, 2, 3, then 4, then 5, 5, 6, no, 7, 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time, 7, 5 time, 8, 0 time, and 9, 2 time. How many times are 7 students? 7 contain 5 times. That means a maximum frequency of number is 7. सिंपल भाषा में स्टूडेंट 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 5 भी जो है 2 टाइम्स आ रहा है, और जो 7 है वो कितने टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट? 5 टाइम्स. दैट मीन्स मोड will be equal of 7. Okay student, you know that very well. Question basically divide into 2 category. First one series and second one class. What is the meaning of the class? अगर जो यही क्वेश्चन होता तो मैं टेबल के फॉर्म में शो करता. दैट मीन 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. फिर उसको करने की मेथड भी डिफरेंट होती. फर्स्ट वन स्टूडेंट, according to the syllabus of the class 8 related to chapter number 5, first one average. What is the meaning of the average? Sum of observation divided by the number of observations. Second one median. Median basically divided into 2 category. One category that means a even, and second category that means a odd. देन आफ्टर मोड. मोड के लिए हमको क्या करना है? ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हो रहा है. दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम. कौन सा नंबर है जो सबसे मैक्सिमम टाइम है? 7. सो मैक्सिमम टाइम दैट मीन्स 5 टाइम्स अकर 7. सो हियर मोड विल बी इक्वल ऑफ 7. नाउ under the graph, first method, that means a telemark. Student, telemark distribution. Okay,
सपोज यही क्वेश्चन है, नंबर विल बी इक्वल ऑफ 2, 5, 9, 13, 14, 7, 18, 12, 5, 7, 13, 8, 12। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्या है, नंबर है। फॉर एग्जांपल 2, 5, 9, 13, 14, 7, 18, 12, 5, 7, 13, 8 and 12 and we have to make टेली मार्क। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा स्टूडेंट? अगर जो हमको एवरेज का क्वेश्चन पूछा है तो मैंने आपको बताया सेकेंड वन मीडियन ऑल्सो डिफाइंड, देन आफ्टर मोड ऑल्सो डिफाइंड। नाउ टाइम टू डिफाइंड द टेली मार्क। टेली मार्क बेसिकली डिफाइंड बाय द टू सेवरल मेथड। फर्स्ट वन नंबर बेस्ड एंड सेकेंड वन क्लास बेस्ड। मैं दोनों बताऊंगा स्टूडेंट। सबसे पहले फर्स्ट वाले इंटरवल में आएगा क्लास इंटरवल। फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। सेकेंड कॉलम दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। देन आफ्टर टेली मार्क। स्टूडेंट, what is the mean of class interval? Class interval basically divide by ourselves। अगर जो क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे, और अगर जो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन वी डिवाइड 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 and 12 to 16 and 16 to 20। फर्स्ट वन 0 to 4, 4 का इंटरवल है। हियर हाइट, व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइट? हाइट दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल वैल्यू 0 एंड फाइनल वैल्यू 4। डिफरेंस बिटवीन 4 and 0 दैट मीन्स 4 minus 0 will be equal of 4। Here also difference between the 8 minus 4 will be equal of 4। 12 minus 8 that means 4। 16 minus 12 equal to 4। 20 minus 16 equal to 4 that means 4 is a height of class interval। Next one, what is the mean of 0 to 4? 0 to 4 that means इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, इन द केस ऑफ 0 to 4 only introduce 0, 1, 2 and 3। तो 4 कहाँ पर आएगा स्टूडेंट? इन द केस ऑफ द 4 to 8 डिफाइन 4, 5, 6, 7, 8 introduced by the next, that means 8, 9, 10, 11, 12 introduced by these 12, 13, 14 and 15 and here 16 introduced by last, that means 16, 17, 18 and 19। So student ध्यान से देखिए, गिवन क्वेश्चन और गिवन ऑब्जर्वेशन हमको नंबर के दिया है 2, 5, 9, 13, 14, 7, 18, 12, 5, 7, 13, 8 and 12। We will start 0 to 4। What is the mean of the 0 to 4? मुझे 0, 1, 2 और 3 पर फोकस करना है। 2, ओके, ठीक है, ओनली सिंगल 2। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 0 to 4। 0 to 4 में मुझे कितने नंबर मिल रहे हैं? सिंगल नंबर। डिजिट दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी and tally mark represent by the 1 represent by the single line, 2 represent by the 2 parallel single line, 3 represent by the 3 parallel single line, 4 represent by the 3 single line, 4 represent by the 4 single line and 5 represent by like this। ओके स्टूडेंट, ये जो सिंबल बता रहा हूँ
1 2 3 4 ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कुछ स्टूडेंट करते हैं, कुछ बुक में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा भी दिया है। स्टूडेंट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सिंबल फॉर द टेली मार्क। ठीक है, परफेक्ट सिंबल क्या होगा? ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कहीं ना कहीं in the case of 0 to 4 we getting only one number in the form of 2. Now next time to define the class interval 4 to 8. What is the mean of the 4 to 8? Introduce 4, 5, 6, 7 and 8. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है 5 मुझे मिला है, ठीक है मुझे माइंड में क्या रखना है? 4, 5, 6 और 7। ओके ओके ओके, दैट मीन्स 3 नंबर्स। कौन कौन से नंबर मिले हैं? तो मुझे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही शो होना चाहिए। बारीक बारीक चीज़ों को समझूंगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं? वी गेटिंग 5 7 7 तो किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं, बट व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स? ऑलवेज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी लाइन को रीड आउट करते हैं, तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। मतलब मुझे क्या नंबर मिले हैं? वी गेटिंग 5, then after 7, then after 5 and 7, that means we getting the 4 numbers, tally mark 1 2 3 and 4. Okay student, then after in between 8 to 12, what is the mean of the 8 to 12? That means 8 9 10 and 11 doesn't इंट्रोड्यूस 12, मतलब इसमें 12 नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, डिफरेंट सिम्बल्स आप बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर रेड पेन से अंडरलाइन करा था ताकि मुझे डायरेक्ट दिख सके, सिर्फ एक नंबर है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करा। अब मैं थोड़ा सर्कल बना लेता हूँ, 8 9 10 एंड 11। ये 12 है, तो देखिए इसमें नहीं लिया है मैंने। ठीक है, सो हियर सेकेंड वैल्यू, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द 8 to 12? वी गेटिंग ओनली 2 नंबर्स। ठीक है, ऑर्डर in order 9, 8, tally mark by the 2 parallel single line. Then after 12 to 16, what is the mean of the 12 to 16? Only 12, 13, 14 and 15. Try to make a different shape. Student, now we taking the triangle shape. Again देखिए पहले से ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 12 ऑल्सो, ठीक है, एंड 13 ऑल्सो एंड 12 ऑल्सो। दैट मीन्स इन द ट्राइंगल शेप 1 2 3 4 5 टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी of 12 to 16 will be equal of 5. Observation from left to right, that means 13 14 12 13 and 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and left to right. Student, next and last, that means 16 to 20. In the case of the 16 to 20, we introduce only 16 17 18 and 19. Student, ठीक है, डिफरेंट शेप लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं। फर्स्ट वन, ओनली वन वैल्यू, दैट मीन्स 18, ओनली वन नंबर 18, टेली मार्क 1. स्टूडेंट, लास्ट and resultant row, that means total 1 plus 4, that means 5, 5 plus 2 equal to 7, 7 plus 5 equal to 12 and 1 will be equal of 13. क्या हमको टेली मार्क भी टोटल के फॉर्म में शो करना है? बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर will be equal of total, that means result is correct. स्टूडेंट, ऐसा करने से क्या होता? मान लीजिए कभी छूट भी गया,
हमको चेकआउट करना है, डायरेक्ट मुझे चेक करना है 4 to 8। तो याद रखिए मैंने कौन सा शेप दिया था, ब्लैक अंडरलाइन। ओके, अगर जो मुझे इसको काउंट करना है, मतलब मैंने सर्कल, फिर यहाँ पर ट्राइंगल और यहाँ पर कुछ ऐसी डिज़ाइन बनी थी, तो डिफरेंट डिज़ाइंस लेने से हमको चेकआउट में इजी होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा है एवरेज एंड मीडियन। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, दैट मीन्स अ पाई चार्ट, historical graph, plane graph and connective graph by use of the resistance. I hope student you getting the 110% solution related to telemark and mode. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel and please study all subject from our channel. Thank you so much.